Welcome all of you. So I'm back again with a chapter in statistics. Okay, so this is measures of central tendency. So here we are going to start with this chapter that is measures of central tendency. In this chapter we are going to take up mean, median and mode. Okay, so let us start. So here we are going to start with mean, median and mode. So what exactly is mean? Let's see. So the three measures of central tendency are mean, median, okay, median and mode. So we are going to take up one after the other in each one of these. Okay, mean, median and mode. So we are going to take up one after the other. Now what is mean? Okay, mean is nothing but the average, what you know till now as average in the lower classes, and you have also done average in many you have done average, you have calculated your own average marks of the different subjects, you have done it so many times. Okay, that only is mean. But here what happens is mean we have to do for a much bigger number of people. Okay, that is what we call a population. So here we talk about a much bigger number of people, we have a much bigger data, and with that data when we are working, then how do we find mean? So there are different types of methods of finding mean depending on the size of the data. So first thing, mean. So mean, as I said, is an average. Firstly, let me take up one sum, and as I proceed, let's see. Now this is my first set of numbers of which I am going to find a mean. Okay, so let me see. Here I have 11, 14, 23, 26, 10, 12, 8 and 6. How many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. That is very important. The number of numbers is very important. We have to count it. And then we have to find the mean of this data. Okay, so when we find the mean of the data, find the mean of the given data is our question. Now what to do? Now here first thing is we will add them. Okay, firstly we are going to add. So sum of all the numbers, so x bar, which is mean, is sum of all the numbers by number of numbers. Okay, that is very simple. You had also added all the marks obtained in all the subjects and divided it by the number of subjects that you have been doing all this time. So here sum of all the numbers is, I can see how much it is. This is 25 plus 23. Now what happens? Many times आप इसको ऐसे ही ऐड करने जाते हैं, और जब आप ऐड करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी गलतियां हो जाती है इस एडिशन में. तो एडिशन में गलतियां कम कैसे करें, अब देखते हैं. इसमें कम से कम गलतियां. ओके, तो फिर 11 प्लस 14 25 हो गया. 25 के साथ आप 23 ऐड कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लिख लिया. ठीक है, 8 एंड 48 के साथ फिर 26 को ऐड कर दीजिए. इधर 4 हो गया. ओके, एंड इधर हो गया 7. 26 के बाद और 10, 84 एंड देन 12. 84 एंड देन 12 हो गया 96 एंड 18 प्लस 6, दैट इज 24. सो 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 96 प्लस 24 हो गया 120. तो हमारा जो टोटल सम ऑफ नंबर्स ये हो गया 120. ठीक है, एंड नंबर ऑफ नंबर्स है 8. सो हम यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं. 4, सो 30 एंड 4 2 विच इज 15. सो आवर मीन वैल्यू इज 15. अब ये जो सम है ना, ये सम था हमारा ईजीएस्ट क्वेश्चन. ये है हमारा ईजीएस्ट क्वेश्चन क्योंकि इसमें ना तो फ्रीक्वेंसी थी, ना कोई टेबल, ना क्लास इंटरवल, कुछ नहीं था. ओके, तो ये सम इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन मीन. द मीन ऑफ 6, 4, 7, 8 एंड 10 इज 8. ये जो एक और ही टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. इफ
मीन ऑफ 6, 4, 7, A एंड 10 इज 8, यानी कि मीन का वैल्यू हमें दे दिया गया है, ठीक है। जब जब आपको एक डेटा में से एक वैल्यू आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको मीन देना ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में ध्यान से खोजिए कि आपको मीन दिया है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है तो मीन ज़रूर देना है। तो फिर फाइंड ए, तो फिर मैं वही वाली मेथड लगाती हूँ कि यहाँ पे सम लिखना है और यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स, that is number of data given. What is the number of data? 1 2 3 4 5 5. Okay, so 8 in place of mean. Here sum is 10, 17 and 27. 27 plus a, ये हो गया सम ऑफ नंबर्स। रहने दीजिए यहाँ a को, हम लोग संभाल लेंगे। और यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स इज ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5. ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन। दिस इज 40, दिस इज 27 प्लस a इज 13 क्लियरली। ओके, सो a का वैल्यू हो गया 13 इन दिस सम। नाउ हियर इज द एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, दिस इज द एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया एज गिवन इन ईयर्स इधर है, और यहाँ मेरा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी डेटा में जहाँ भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा तो फिर 2 people have the age of 12 and 4 people have the age of 13 and 6 people have the age of 14. तो ये है नंबर ऑफ पीपल टू जिसको who correspond to this data. तो here 9 people have the age of 15, ऐसा चलेगा। अब इसका मुझे मीन निकालना है, फाइंड द एरिथमेटिक मीन। तो ये सम क्लियरली जो पहला वाला सम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख रहे थे पहले वाले सम में फ्रीक्वेंसी तो था ही नहीं, बिल्कुल यही वाली लाइन दी हुई थी हमें। और इसमें है कि ये इसमें डेटा का साइज थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी ऐसा लिखना पड़ गया है, ठीक है। तो फिर अभी इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स है। पहले तो दिस इज फाइंड द मीन, और अभी हम जो वाली मेथड इस पे लागू करने वाले हैं वो है डायरेक्ट मेथड। ओके, ये सिंपलेस्ट मेथड है। तो फिर पहले तो एज इन ईयर्स जो है ना, इसको हम x मान लेंगे, इसको मान लेंगे x, ठीक है। अब एक और कॉलम बना लेंगे और इस कॉलम में हम लिख लेंगे fx यानी कि हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, तो फिर 24, दिस इज 52, हियर 84, 135, मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 128, 119, 72। तो ये हो गया मेरा fx का कॉलम, ये हो गया f का कॉलम। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं देख लीजिए। तो डायरेक्ट मेथड में दिस इज मीन को ऐसे लिखते हैं x बार, और यहाँ हम लोग लिख देंगे समेशन fx बाय समेशन f। अब समेशन fx क्या है, इसको ऐड करना है, इसका जो ऐड करके जो सम आएगा वो हमें समेशन fx, एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है एडिशन। तो मैथ्स में आपको बहुत जगह ये वाली साइन मिल जाएगी, मतलब होता है सिंपल से, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सम, समेशन इज सम। तो इसको हमें ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, और समेशन f, ठीक है। तो समेशन f हम जल्दी में नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ 40 दिया हुआ है, लेकिन एक बार कर लेने से अच्छा है कि कहीं हमने कोई गलती से कॉपी तो नहीं किया है, तो फिर ये भी हमें 40 आना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 12 प्लस 8 20 प्लस 16 36 प्लस 4 40, करेक्ट है, हमने करेक्ट कॉपी किया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो 40 हो गया, ठीक है। और फिर समेशन fx। अब समेशन fx में गलतियां बहुत होती है, क्योंकि हम ऐसे ऐड करना चालू कर देते हैं, इसको ऐड कर लिया, यहाँ लिखा, बाय दैट टाइम कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो इसको बहुत जल्दी से करने के लिए हम क्या करें, यहाँ तो हमें 76 दिख रहा है, 76 84 कर लेते हैं, तो फिर ये हो गया 160, ठीक है, प्लस 135 कर दीजिए, लिखिए, 2 नंबर्स को ऐड कीजिए, उसके आंसर से दूसरे को ऐड कीजिए, तो 5 9 हो गया, 295 हो गया, ठीक है। और फिर 128 लिख दीजिए, और यहाँ 13 1, दिस इज 12, दिस इज 423,
423 एंड उसके साथ 119 भी ऐड कर दीजिए। दिस इज हो गया 542 के साथ 72, 542 एंड 72 हो गया 614। तो ऐसे ऐड करेंगे हम। आप ऐसे ऐड करेंगे तो देखेंगे कभी भी गलत नहीं हो रहा है। 614 तो फिर ये तो 2 से डिवाइड करते हैं 307। ओके, तो फिर इसके बाद ये और डिवाइड होगा तो नहीं, तो फिर इसको 15, दिस इज 15 एंड 15 एंड देन 3.5, ठीक है। 3.5 डिवाइडेड बाई 10, मैंने पहले 2 से डिवाइड कर लिया, फिर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, सो 15.35। तो हमारा मीन आ गया 15.35। यहाँ मीन, फाइंड द मीन बोला है एज इन ईयर्स, तो आप इसको मीन आप यहाँ ईयर्स लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते नहीं, आपको लिखना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड वाला सम। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन छोटा नंबर था, नंबर्स छोटी थी तो हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट नंबर्स आ जाएगा, 114 आ गया यहाँ पे, या फिर 323 आ गया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे चल के, वीडियो को एंड तक देखिए, आप देखेंगे कि इसको जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम कैसे हैंडल करते हैं। ये जो सम आ गया, अभी इस सम में कुछ एक बात अलग है प्रीवियस सम से। इसमें जो ये एफ है ना, ये मिसिंग है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली सम है। ओके, और यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है और इसमें मीन हाइट दिया हुआ है। मीन हाइट, हमें जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हमें मीन हाइट ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो हम सम आगे बढ़ ही नहीं सकता है सम। तो फिर 60.95, मीन हाइट इज 60.95। ओके, सो नाउ हाउ विल आई डू द सम। इसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पहली बात तो ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में डेटा दिया जाएगा तो फिर वो हॉरिजॉन्टली देंगे, आपको वो हॉरिजॉन्टली देंगे। आप उसको जब कॉपी करेंगे तो आप इमीडिएटली फर्स्ट टाइम ही इसको ऐसा वर्टिकली कर लेंगे। ओके, इसको हॉरिजॉन्टली आपको रखना ही नहीं है क्योंकि हमें तो बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं। तो फिर यहाँ हाइट इन सेंटीमीटर और यहाँ प्लांट्स, तो 2 plants have the height of 50 centimeter, 4 plants have the height of 55. This is the meaning. Okay, तो ये हो गया हमारा x, this is x, okay, and this is f, this is our frequency. Okay, and now we are going to write the fx column. Okay, तो इस f और इस f में confuse नहीं हो जाइए। तो फिर this is 100, then this is 220, then this is 580, 60f, इसको नोट कीजिए। ओके, 325, 280, 213। ओके, तो हमारा fx बन गया। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे x बार। x बार इज इक्वल टू समेशन fx बाय समेशन f। ओके, तो फिर अभी समेशन fx की जगह हम लिख देंगे, समेशन fx की जगह क्या लिख देंगे, हमें इसको ऐड करना है। ओके, तो फिर इसको जब ऐड करते हैं तो 320। ओके, जहाँ तक हो सके ओरली कीजिए और उसके बाद 580। ओके, सो दिस इज 900, टिल हियर 900, इसको छोड़िए। 325, 2512, 1225, 280, 280, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मिस्टेक यहीं पे होता है। एंड 5 and 1, 1505 and 213, 213, this is 8, this is 1, 7, 1718। तो हमारा जो समेशन f है ये हो गया 1718 प्लस 60f। इसको भूलने से आपका सम तो आगे होगा ही नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज द हियर, हाउ मच इज दिस summation f? This is 6, 16, 21 and 7, that is 28. 28 plus f,
okay, and that is equal to 60.95. Okay, that is 60.95. Now how will we calculate? Now this has become a simple linear equation. It is a simple linear equation. What to do now? We will multiply 60.95 28 plus f, okay, and 1718 plus 60f. Now we have to do this multiplication. So here 60.95f, if we multiply this we get 1706.6, okay, and now 1718 plus 60f. अब क्या करेंगे? सिंपल लीनियर इक्वेशन. सो इफ आई ब्रिंग दैट 60f this side, 0.95f, and if I take this 1718 minus 1706.6, that is how much? 1718 1706.6. this is 4 1, this is 1, okay, 11.4. Okay, so now I will remove the points completely from this. So I'll multiply with 100. F is equal to 1140 by 95. F is 1140 by 95. Now how will you do the calculation? Is you first thing is we will use a 5. So 5 19 and 5 2s are 10 and again 2 and 8. Okay, so 228 by 19. So reduce it before you finish your calculation. So 228 by 19, that is 1 9, this is 3 8. Look at this. So here this is clearly divisible 12. So that comes to a 12. Okay, so तो हमारा आंसर हो गया 12, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी था इसका वैल्यू था 12. यहाँ पे एक और बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को. अगर आपको ए वाली फ्रीक्वेंसी कभी आपको इस वाली सम में मीन आपको पॉइंट्स में आ सकता है. ओके, मीन कैन कम इन डेसिमल्स, बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी डेसिमल्स में आ गया तो फिर आप प्लीज़ आपका सम रीचेक कीजिए, क्योंकि फिर तो आपके कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है. आपको कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल्स में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि 4.5 नंबर ऑफ प्लांट्स इज हैविंग अ हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर, है ना. तो फिर यहाँ पे पॉइंट्स नहीं आ सकता है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आंसर तो कभी भी डेसिमल्स में नहीं आ सकता. सो माय आंसर इन दिस क्वेश्चन इज अ 12, नो यूनिट्स बिकॉज इट इज अ नंबर. अब देखते हैं ए वाली सम. इसमें एक नहीं, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. देख लीजिए. ओके, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है F1 एंड F2, यानी कि दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी. बट आपको क्या दिया हुआ है? मीन दे हैव ऑलरेडी गिवन एंड दे हैव आल्सो गिवन समेशन F, मींस सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे हैव गिवन. यू डोंट हैव टू ऐड इट एनी मोर. Okay, so though they have not given this and this, they have given you summation F. So we'll proceed. We'll just remember that this is 73, mean is 73 and summation F is a 200. Now here Fx. Fx is how much? This is 0. This is 50 F1. This sum is going to be slightly different. This is 100 F2 and this is 3750, then 2000 and this is 125 and 0. Okay, now we are going to find the mean. X bar is summation fx by summation f. अब देखिए इसमें जो ट्रिक्स है वो हमें देखना है. समेशन fx, ओके, समेशन fx तो हमें इसे ऐड करना है. इन दोनों को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक हो गया, इसे नहीं ले सकते. इतना ऐड कर लेते हैं. दिस इज 325. सो 325 प्लस 375 इज हाउ मच? दिस इज 700. सो 7000. ओके, मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया था. 7000 हो गया. नाउ दैट इज 7000 इज ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल पार्ट इज 7000. बाकी हमने इन दोनों को छोड़ा था, है ना. सो 50 F1 प्लस 100 F2, right? 50 F1 plus 100 F2. So we have to include this also. And here they have given summation F is a 200 and this is a 73 they gave us. So I'll just multiply this. That will come to 146
is 7000 plus 50 F1 plus 100 F2। अभी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दिख रहा है। ओके, सो इस 7000 को मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो फिर मुझे मिल जाएगा 7600। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 50 F1 प्लस 100 F2। ओके, 50 F1 प्लस 100 F2। अभी इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो इफ आई डिवाइड विद अ 10 आई गेट अ 760 which is a 5 F1 plus 10 F2। I can actually further divide with a 5, so this is 15 and 152, right? 152, and this is F1 plus 2 F2. So this is my final equation. But one thing, if I have two unknown variables, I should have two equations. Okay, so this is a very important thing to note. If there are two unknown variables, you must look for two equations. Okay, otherwise you will not be able to solve them. One unknown variable, one equation. Two unknown variables, two equations. Three unknown variables, you must need three. You have to get three equations. So here this is one equation that we have got. Now we have to get another equation. So that other equation is how much? That other equation is here. We never added this. 15, 40. 40 plus 46, 86. 86 plus F1 plus F2. Okay, 86 plus F1 plus F2 is equal to 200. F1 plus F2 is equal to how much? 200 minus 86, 114. Okay, so can you see two equations now? This is one equation and here is another equation. Now how to solve it fastest? Okay, so what we will do is we'll straight go for this equation and I will write it like this. Can I write it like this? देखिए अच्छे से, F1 मैंने बस इसको split कर दिया है, okay, and this is 152. तो फिर F1 plus F2 के जगह में हम 114 लिख देंगे और इधर F2 रह गया, and this is 152. Okay, so 152 minus 114 is a 38. So F2 is a 38. Like that we get F2 is 38. Once we have got F2 is 38, put it here. So F1 becomes 114 minus 38, that is 76. Okay, so we have got both the values. One is 76, one is 38. Okay, so we have both the frequencies. Now this is one question that I want you all to solve. You can write the answer in the comment box. Find the mean of natural numbers from 3 to 12. Of natural numbers from 3 to 12. That is the first question. And to find the mean of this 6, 9, 11, 12, 7. 6, 9, 11, 12 and 7. कमेंट में लिख के बताइए कि दोनों, आप पहले क्वेश्चन 1 लिखिए और फिर इसका आंसर लिखिए और फिर क्वेश्चन 2, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपने किस सम का कौन वाली आंसर दी है। और फिर इसका भी मीन फाइंड करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच रहा है। तो आज इस वीडियो में मैंने किया है डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, नॉट टैबुलेटेड डेटा का भी मैंने एक मीन फाइंड किया एकदम शुरुआत में, और फिर एक 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक सम किया है और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का भी एक सम किया है। ये जो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला सम है ना, ये टीचर्स के लिए फेवरेट है प्री बोर्ड्स में देने का, तो फिर इसको आप ज़रूर सीख के जाइए क्योंकि ये तो आने ही वाला है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, दोनों प्री बोर्ड्स में से एक में तो आ ही जाएगा।
Okay, so this is what is mean. Okay, so mean ka, this was the first method, that is direct method only in this video. In the next video, I am going to take up mean by other methods. Okay, because we have two more methods. We have mean by shortcut method or assume mean method, and we also have mean by step deviation method, and also for grouped data, how to work with grouped data. Today in this video, I have done only, if you see here, this is only tabulated data. Means there is just a table form, you have this as one value. After this, we'll do direct method of grouped, direct method of class interval sums also. Okay, so keep watching the next few videos as I proceed with more methods. Okay, so if you have liked my video, do not forget to like, share and subscribe. Also, you can also write down a comment behind. You can also write a comment behind if you have any doubts. Okay then, thanks for watching the video. Bye then.